Hello my dear children, welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7th by Brain Root series, and here is a book AI Artificial Intelligence. Children, today we are going to start section A, Artificial Intelligence, and in this we are going to learn chapter number 1, Basics of Artificial Intelligence. So yes, we are going to learn about the basics. So these are the topics that we are going to cover here. We are going to learn about artificial intelligence, purpose of artificial intelligence, advantages of artificial intelligence, AI powered mobile apps, AI variables, what AI could do in future, important milestones for AI in the future, how AI will change the world, concerns about the future of AI. So these topics we are going to cover. So let's start with artificial intelligence. All human beings have natural intelligence, so they can learn, respond, take decisions and make prediction. Computers, on the other hand, are the machines that are made by humans. They do not have natural intelligence, which means they are not capable of taking decisions on their own. So children, the first paragraph says that human beings के पास जो है natural intelligence होता है and इसीलिए ये चीज़ों को learn कर सकते हैं, देख सकते हैं, respond कर सकते हैं, decisions को ले सकते हैं. लेकिन कंप्यूटर्स को हम ह्यूमंस ने बनाया है, इसलिए इनके पास खुद का नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प्स द मशीन्स बिहेव लाइक ह्यूमंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मशीन्स को ह्यूमंस की तरह बिहेव करने में हेल्प करता है अप टू सम एक्सटेंट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ मेनी एल्गोरिथम्स दैट हेल्प मशीन्स mimic human intelligence. Machine learning is a subdomain of AI. In this technique, machine learn with the help of training data. It's assumed that with each iteration of training, the performance of the machine is improving for the given task. So, artificial intelligence ने क्या किया है, machines को humans को mimic करना सिखाया है. तो अभी भी इसमें कुछ कमियां तो हैं, but ये जो टेक्निक है इसने जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग दी है डेटा की, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि ये जो मशीन्स हैं आने वाले समय में पूरी तरह से ह्यूमंस को कॉपी कर पाएंगे. ये मशीन्स दिन ब दिन जो है अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं. Now let's understand with the help of an example. A child learns letter of English alphabets by seeing and writing them again and again. It means that he is learning with training and experience. In the case of machine learning, a machine learns with the help of data. Here data helps in training and plays the role of experience. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया कि जैसा एक बच्चा जो है अल्फ़ाबेट्स को बार बार रिपीट करता है, पढ़ता है, लिखता है ताकि उसे वो लर्न हो जाए. तो ये क्या है, ये एक तरीके की जो है एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है. सिमिलरली मशीन्स भी क्या करते हैं, एक ही डेटा को बार बार रिपीट करते हैं, जो उन्हें हेल्प करता है इस डेटा को लर्न करने में, और ये हेल्प करता है इन मशीन्स के ट्रेनिंग के लिए. मशीन लर्निंग इंक्लूड्स मेनी डिफरेंट मेथड्स. मशीन लर्निंग में बहुत सारे मेथड्स हैं ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड मेकिंग मशीन्स इंटेलिजेंट. इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है. One such method that helps machine learning is artificial neural network. So ये एक तरीका है. ये जो मेथड है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन के वर्किंग को स्टिमुलेट करता है. A subdomain of machine learning, that is deep learning, is based on artificial neural network methods. So जो सब डोमेन है मशीन लर्निंग का वो काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है और ये बेस्ड होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मेथड्स पे. इन अ ब्रॉड सेंस यू कैन से दैट डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग. आप अगर ब्रॉडर सेंस में कहो तो ये जो डीप लर्निंग है ये क्या है, ये एक सबसेट है मशीन लर्निंग का. नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट द पर्पस ऑफ एआई. The main purpose of artificial intelligence lies in some specific domains.
सो जो मेन पर्पस है उसका वो कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स में है। दीज आर एज फॉलोज। पहला आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या है? ये एक मोड है जिसके थ्रू जो है थ्रू इन विच फैक्ट्स आर यूज टू रीड द कंक्लूजन, जिसमें फैक्ट्स को यूज किया जाता है कंक्लूजन को पहुंचने के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इज फाइंडिंग द नेक्स्ट नंबर इन अ सीरीज। एक एग्जाम्पल इसका जो एक एग्जाम्पल है वो है नेक्स्ट नंबर को ढूंढना सीरीज में। AI हेल्प्स कंप्यूटर मेक डिसीजन। AI क्या करता है? कंप्यूटर को डिसीजन लेने में हेल्प करता है बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे। सम लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स दैट अ कंप्यूटर कैन सॉल्व आर। कुछ प्रॉब्लम जो कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है वो है स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द टीवी एंड फैन एंड द AC, मीन्स फैन को स्विच ऑन और ऑफ करना बेस्ड ऑन रूम टेम्परेचर, रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। एंड अंडरस्टैंडिंग कस्टमर डिमांड बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा, और लोगों के डिमांड्स को समझना हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। So knowledge representation is a part of AI that is responsible for representing information about the real world in such a way that the computer can comprehend and use it to solve complex and real world problems. So यहाँ पे क्या है? चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जिसकी वजह से जो कंप्यूटर है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाता है। लाइक डायग्नोसिंग अ मेडिकल कंडीशन और कम्युनिकेटिंग विथ ह्यूमंस, जैसे कि किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम को डायग्नोस करना या फिर ह्यूमंस के साथ बात करना इन नेचुरल लैंग्वेज। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग फ्रॉड एंड व्हीकल और अ व्हीकल दैट हैज वायलेटेड अ ट्रैफिक रूल। सो एप्लीकेशन, ये जो नॉलेज है इसका एप्लीकेशन क्या है? ये हेल्प करता है फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने में और ऐसे किसी व्हीकल को आइडेंटिफाई करने में जिसने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है। Next comes planning and navigation. To execute a task successfully, planning is essential. अगर आप चाहते हैं कि किसी काम को अच्छे से किया जाए तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। For example, in self-driving car, the source, destination and path are planned well. इस केस में जो सोर्स है, जो डेस्टिनेशन है और जो पाथ है उसे बहुत अच्छे से प्लान किया जाता है। एंड देन कार्स नेविगेट ऑन द प्लान्ड पाथ, और फिर जो कार्स है वो नेविगेटेड पाथ तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गोल ऑफ AI। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल है AI का, टू प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करने का, विच मे बी इन टेक्स्ट फॉर्म और इन स्पीच फॉर्म, जो टेक्स्ट या फिर स्पीच के फॉर्म में हो सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ NLP इंक्लूड, जो NLP के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें आपको जो है अंडरस्टैंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन को समझना, वॉइस सर्च जो गूगल के थ्रू है या फिर वॉइस टॉपिंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट इज परसेप्शन। द नेक्स्ट गोल ऑफ AI इज टू मेक मशीन्स इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। जो अगला गोल है AI का वो है कि मशीन्स जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर सकें। मशीन्स जो है दस बिकम एबल टू रिएक्ट बाय सेंसिंग द एनवायरनमेंट। ये क्या करती हैं? एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, एनवायरनमेंट को सेंस करके, जैसे ह्यूमंस रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, उससे हम उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं। सेंस ऑर्गन हमें बता देते हैं विच सेंस इज वर्किंग नाउ। एग्जाम्पल यहाँ पे है जैसे रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एमर्जेंट इंटेलिजेंस। ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं मशीन को इंटेलिजेंट, मीन्स there should not be a need of explicit programming। यहाँ पे explicit programming की ज़रूरत नहीं है for change in the environment के change में। The purpose is to design machines that can learn on their own। इसका जो purpose है वो है कि ऐसे machines को बनाना जो क्या कर सकते हैं? learn कर सकते हैं खुद से। Now let's learn about the advantages of artificial intelligence। सो ये क्या है? AI जो हेल्प करता है मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाने में। AI जो मशीन्स को केपेबल बनाता है लर्न करने में खुद से एक्सपीरियंसेस के द्वारा। ये क्या करता है? हेल्प करता है ह्यूमन इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने में, कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर्स, मीन्स जिसकी वजह से ह्यूमंस के एरर भी यहाँ पे कम हो जाते हैं। AI एनेबल्ड मशीन्स जो है हेल्पफुल हैं हजार्डियस टास्क
जो हम ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ख़तरनाक हो सकते हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्टिंग हो गया, या फिर हजार्डियस केमिकल टेस्टिंग। इन सब में जो है ह्यूमंस को इन्वॉल्व नहीं करना होता अगर एआई जो है काम कर रहा है। एआई जो है ये एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की तरह भी वर्क करता है और हर एक इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है। एआई जो हेल्प करता है मशीन्स को डिसीजन लेने में ह्यूमन से तेज। एआई जो है अगर हमने यूज़ किया तो मशीन जो है 24/7 बिना ब्रेक लिए चल सकती है। एंड बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इन ऑलमोस्ट एवरी डोमेन, हर एक पार्ट में ये सारी जो है एआई पावर्ड हो गई हैं। इट हैज़ हेल्प्ड द मैनकाइंड सॉल्व द मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। और क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज एआई पावर्ड हो गई हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व कर लेती हैं। नेक्स्ट, एआई पावर्ड मोबाइल ऐप्स। अब हम पढ़ेंगे एआई पावर्ड मोबाइल ऐप्स के बारे में। सो इन रिसेंट ईयर्स, अभी जो दिन चल रहे हैं इसमें इंडिया ने जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है मोबाइल इंटरनेट मार्केट में। एंड विथ मोर देन बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स, बिलियंस ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं जो यूज़ करें मोबाइल डे बाय डे और इन मोबाइल ऐप्स को। एन ऐप इज़ अ स्मॉल स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। ऐप क्या है? एक छोटा सा स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे, जैसे कि स्मार्टफोन हो सकता है या फिर टैबलेट हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाता है बहुत सारे ऐप्स में, जिसमें सोशल मीडिया ऐप्स भी आते हैं जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। ई कॉमर्स ऐप्स भी हैं यहाँ पे जिससे हम शॉपिंग वगैरह करते हैं जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस। और इसके अलावा पेमेंट ऐप्स हैं वो भी एआई को यूज़ करें जैसे कि पेटीएम और गूगल पे। बहुत सारे जो ये हैं ऐप्स हैं, मेनी ऑफ दीज मेक अस अ बिग डेटा यूज़ ऑफ बिग डेटा एंड मशीन लर्निंग एज वेल। ये क्या करते हैं? बिग डेटा को यूज़ करते हैं और मशीन लर्निंग को भी यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल मोबाइल ऐप्स। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और यूजफुल मोबाइल ऐप्स के बारे में। फर्स्ट कम्स Socrates. Here you can see the picture. It is a AI powered app acquired recently by Google. इसे जो Google ने अभी recently acquire किया है। It assists student with arithmetic and other assignment. Means maths और दूसरे assignment के साथ ये बच्चों को help करता है। बच्चे जो क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन के कैमरा को यूज़ कर सकते हैं पिक्चर को लेने के लिए किसी भी क्वेरी की, किसी भी क्वेश्चन का, और यहाँ पे आप आके जो है अपने जो भी विजुअल एक्सप्लेनेशन है उस क्वेश्चन का वो हम देख सकते हैं। Socrates इज़ अ टेक्स्ट एंड स्पीच रिकग्निशन प्रोग्राम। ये एक टेक्स्ट और स्पीच रिकग्निशन प्रोग्राम है जो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को साइंस, मैथ्स, लिटरेचर, सोशल स्टडीज़ और बाकी सब्जेक्ट्स को लर्न करने में। ये ऐप जो है ये काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल है दोनों एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस के साथ। नेक्स्ट कम्स डाटाबोट। सो इट इज़ अ AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंस। ये AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंस है एंड ये अवेलेबल है विंडोज़ 10 पे, एंड्रॉयड पे और iOS पे। ये जो ऐप है ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है और प्रोवाइड्स यू विथ इमेज और इमेजेस शो करता है, इंफॉर्मेशन शो करता है और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन शो करता है जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, जिस टॉपिक पे आप इंटरेस्ट रखते हो। डेटाबोट कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड मेनी लैंग्वेजेस। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस को बोल और समझ सकता है। नेक्स्ट कम्स डेली हंट। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ डेली हंट। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़ ऐप है इंडियंस के बीच। ये जो ऐप है ये एग्रीगेट करता है कंटेंट को अलग अलग न्यूज़ पब्लिशर्स से और अपलोड करता है 1 लाख से भी ज़्यादा न्यू आर्टिकल्स रोज। ये जो ऐप है ये पास करता है AI पावर्ड स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इंजन से, जो क्या करता है राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है इंडिविजुअल के पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ये जो है कैटर करता है वर्नाकुलर रीडर्स को। नेक्स्ट इज यूपर। इट इज़ एन AI पावर्ड emotional health assistance app and is one of the best mental health app available both on Android and iOS. iOS और Android दोनों पे ये ऐप अवेलेबल है और ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ऐप है। ये ऐप हेल्प करता है यूजर्स को अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखने में, उनके
मेंटल हेल्थ को ध्यान ठीक रखने में और उनको फिट रखने में। नेक्स्ट है सीइंग एआई। दिस इज अ पिक्चर ऑफ सीइंग एआई। ये एक माइक्रोसॉफ्ट का सीइंग एआई ऐप है जो एआई पावर्ड है एंड ये क्या करता है, ये इमेजेस को रिकॉग्नाइज करता है। डिस्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है स्पेशली फॉर द विजुअल इम्पेयर्ड, मीन्स जो विजुअल इम्पेयर्ड है, मीन्स जो देख नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए ऐप बनी हुई है। द एलिमेंट्स इन द सराउंडिंग ऑफ द यूजर आर आइडेंटिफाइड थ्रू द कैमरा। जो एलिमेंट्स हैं सराउंडिंग में उसे कैमरा आइडेंटिफाई करता है एंड एन ऑडियो डिस्क्रिप्शन इज जनरेटेड, और एक ऑडियो बनता है। अदर फीचर्स इंक्लूड शॉर्ट टेक्स्ट रीडिंग, document scanning, barcode recognition, the ability to describe image across the social media apps etc. So ये other features हैं इस ऐप के। नेक्स्ट आता है रीड अलोंग बाय गूगल। ये भी एक एंड्रॉयड ऐप है बच्चों के लिए ओवर द एज ऑफ 5 years, जो 5 साल से ऊपर के बच्चे उनके लिए ऐप बना है। ये ऐप क्या करता है, बच्चों को हेल्प करता है लर्न करने में, रीड करने में, दोनों ही चीज़ें वोकल या फिर विजुअल फीडबैक देके वाइल दे रीड अलाउड, मीन्स बच्चे इसके साथ रीड अलाउड मीन्स तेज तेज रीडिंग करते हैं। द सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज गूगल्स एआई पावर्ड स्पीच रिकग्निशन। इसमें जो गूगल का एआई पावर्ड स्पीच रिकग्निशन है एंड इट डिटेक्ट्स द स्टूडेंट्स रीडिंग प्रोग्रेस। ये स्टूडेंट के रीडिंग प्रोग्रेस को डिटेक्ट करता है विद द सपोर्ट ऑफ एन ऐप असिस्टेंट नेम दिया। इसमें ऐप असिस्टेंट है जिसका नाम है दिया। फिर आता है लोब। लोब ये क्या है, ये एक एआई एनेबल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऐप है जो क्या करता है, हेल्प करता है यूजर को ट्रेन करने के लिए मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स को विदाउट राइटिंग एनी कोड, बिना कोड्स को लिखे। यूजर जस्ट हैव टू शो सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट दे वांट द ऐप टू लर्न। बस जो है यहाँ पे आपको यूज़र को ये बताना होता है आपको कि आप क्या देखना चाहते हो या क्या लर्न करना चाहते हो। एंड इट ऑटोमेटिकली ट्रेन्स मशीन लर्निंग मॉड्यूल दैट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू यूजर्स ऐप, और ये एकदम से जो है मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट कर देता है। नेक्स्ट ऐप है स्पॉटिफाई। ये जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर म्यूज़िक ऐप है पूरे दुनिया में एंड ये भी एआई जनरेटेड है। ये जो है मशीन लर्निंग इसमें होती है और ये डेटा को एक्वायर कर लेता है यूज़र के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, सॉन्ग प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप मेनली सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हैं। कीवर्ड प्रेफरेंसेस को ये ध्यान में रखता है, प्लेलिस्ट को ध्यान में रखता है, जोग्राफिकल लोकेशन जो लिसनर की उसे ध्यान में रखता है, और मोस्ट यूज डिवाइसेस एंड मोर। सो ये सारी चीज़ों को ये ध्यान में रखता है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। जो ये डाटा को कलेक्ट करता है इज यूज टू ट्रेन एल्गोरिदम एंड एनहांस द यूजर एक्सपीरियंस। यूजर के एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। नेक्स्ट ऐप इज ब्रेनली। सो दिस इज अ आइकन ऑफ ब्रेनली। ये जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलर एजुकेशन ऐप है। ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को जिनको प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी होती है उनके होमवर्क में। ब्रेनली क्या करता है, यूज़ करता है विजन एआई अपने स्टेप्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Instead of typing the question manually, student can simply take a photo with them to the Brainly app. So क्वेश्चन को लिखने की जगह आप बस उस क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करके आप Brainly ऐप पे डाल सकते हो एंड उससे रिलेटेड जो रेलिवेंट आंसर्स हैं उन्हें आप पिक कर सकते हो वहाँ के Brainly के डेटाबेस से। नेक्स्ट इज ड्रीम बाय वोम्बो। ये जो ऐप है टर्न करता है आपका आइडियाज़ को एआई पावर्ड पेंटिंग में सेकेंड्स में, और यू कैन टाइप in whatever you want to create like alien space station। आप जिस भी तरीके से टाइप करना चाहते हो आप टाइप कर सकते हो इसमें। रेनबो फॉरेस्ट और एनीथिंग एल्स you can imagine, and a large number of AI generated paintings and products producers by the app। मीन्स जैसे आप ये सारी चीज़ें टाइप करोगे तो AI जनरेटेड आपको पेंटिंग्स यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट कम्स गूगल लेंस। ये एक AI पावर्ड ऐप है दैट यूजेस योर स्मार्टफोन कैमरा, जो आपके स्मार्टफोन के कैमरा को यूज़ करता है, और इसमें डीप मशीन लर्निंग है जो डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को, उसे समझता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन देता है। गूगल लेंस जो है रिकॉग्नाइज कर सकता है आपके सराउंडिंग को, बर्ड्स को, प्लांट्स को, फ्लावर्स को, स्पीशीज़ को फोटोग्राफ में से
when you point your camera at them, जब आप अपना कैमरा इनके पास ले जाते हो. You can point your phone at text, आप अपने फ़ोन को टेक्स्ट पे भी ले जा सकते हो, and it will translate the text or search for highlighted text. उस टेक्स्ट को आप जो है वहाँ से हाईलाइट कर सकते हो या फिर उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो. नेक्स्ट, Zoom it is a commonly used video conferencing app. ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है. एंड व्हेन द वर्ल्ड वाज इन लॉकडाउन फॉर द कोरोना वायरस पैंडमिक, जब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया था तो उस समय जो है Zoom ऐप जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ जाने लगा था. बिजनेस सॉफ्टवेयर, Zoom went from being only business software to an app which people use not for meeting for the million working from the home but also for education and training. तो Zoom ऐप को ना तो सिर्फ जो है ट्रेनिंग के लिए या फिर बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा रहा था, इसके अलावा जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस समय एजुकेशन पर्पस के लिए भी इसे यूज़ किया जा रहा था. फैमिली फंक्शंस में भी जो है लोग Zoom ऐप को यूज़ कर रहे थे, प्रमोशन के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए भी इसे यूज़ किया जा रहा था. इट बिकेम एन इनवैल्यूएबल लाइफलाइन टू द आउटसाइड वर्ल्ड. ये जो है काफ़ी ज़्यादा इनवैल्यूएबल लाइफलाइन बन चुका था पूरी दुनिया के लिए, आउटर वर्ल्ड के लिए. एंड पीपल टू डू मैनी थिंग्स ऑफ द थिंग्स दे यूज टू डू इन द पर्सन. मीन्स यहाँ पे लोग जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने लगे थे जो पर्सनली किया करते थे. Zoom has artificial intelligence at the core of its product. By optimizing connections, video compression and audio transfer, Zoom guarantees improved video quality. इसमें आपको improved video quality दिखेगी. उसके साथ हम यहाँ पे वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं और ऑडियो को ट्रांसफर भी कर सकते हैं. नेक्स्ट ऐप इज हेल्थीफाई मी. दिस इज द ऐप आइकन. सो ये भी एक AI एनेबल्ड हेल्थ और फिटनेस ऐप है और ये हेल्प करता है इंडिया के लार्जेस्ट ये इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल वेलनेस प्लेटफॉर्म है. ये क्या करना, हार्नेस करता है AI को और ऑफर करता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड हेल्थ और फिटनेस सर्विसेज जैसे कि कैलोरी ट्रैकिंग, न्यूट्रिशन, फिटनेस कोचिंग, डाइट और वर्क प्लान्स बताता है. ये जो है बोथ iOS और एंड्रॉयड दोनों जगहों पे अवेलेबल है और ये जो ऐप है ये फीचर करता है AI न्यूट्रिशनिस्ट रिया. यहाँ पे AI न्यूट्रिशनिस्ट रिया है जो एक्ट करती है एज अ पर्सनल हेल्थ असिस्टेंट. नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट AI वेयरेबल्स. अब AI के अभी तक हमने ऐप्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे AI वेयरेबल्स. मीन्स ऐसे गैजेट्स जो AI पावर्ड है और उन्हें हम पहनते हैं. So wearable technology, also known as wearables, is a category of electronic devices that can be worn as accessories, embedded in clothing, implanted in the user's body and even tattooed on the skin. So ये जो AI wearables है ये हम क्या कर सकते हैं, इन्हें पहन सकते हैं, कपड़ों में भी हो सकते हैं, ये यूज़र के बॉडी पे हो सकते हैं, टैटू में भी लोग जो है AI wearables को अटैच करा रहे हैं. ये जो डिवाइसेस है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है आजकल. ये हैंड फ्री गैजेट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल यूसेज के साथ होते हैं, पावर्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, एंड कैन इवन सेंड एंड रिसीव डेटा वाया द इंटरनेट, और डेटा इंटरनेट से ये भेज भी सकते हैं. हैंस ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द अम्ब्रेला टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नीचे भी इंक्लूड किया गया है. वेरेबल डिवाइसेज जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं आजकल जो AI पावर्ड है और ये क्या करती है, एनहांस करती हैं फंक्शनैलिटी को. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द गैजेट्स और AI वेरेबल्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द नियर फ्यूचर. फर्स्ट कम्स मुद्रा बैंड. दिस इज मुद्रा बैंड. सो मुद्रा बैंड जो है डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया जाता है, डेवलप किया गया है वेरेबल डिवाइसेस लिमिटेड के द्वारा. ये हाथ कलाई में पहनने वाला वेरेबल बैंड है जिसमें इससे जो है यूज़र क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है म्यूज़िक को, कॉल्स को मैनेज कर सकता है, अपॉइंटमेंट्स को शेड्यूल कर सकता है और एफर्टलेस फिंगर मूवमेंट भी कर सकता है. द प्रोडक्ट इज इक्विप्ड विद सेंसर एंड कैप्चर न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन. ये क्या करता है, ये जो ये जो बैंड है इसमें आपको मतलब फिंगर मूवमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, एफर्टलेस है ये जो है आपके न्यूरल सिग्नल्स को भी कैप्चर करता है. मीन्स आपके जो नर्व्स सिग्नल भेजते हैं उनको भी कैप्चर करता है फ्रॉम योर ब्रेन.
The inbuilt deep learning algorithm help decipher the signal pattern and understand the finger movement in real time. So इन सारी चीज़ों में ये ऐप, ये जो गैजेट है ये हेल्प करता है. नेक्स्ट कम सैमसंग गैलेक्सी बड प्रो. सो आप देख सकते हैं आजकल ऐसे ईयरबड्स लोग यूज़ कर रहे हैं. जो ईयरबड है ये AI पावर्ड सेंसर होता है. ये क्या करता है, एन एक्टिव नॉइस कैंसलिंग फीचर है इसमें, जो कट डाउन करता है बाहर के बैकग्राउंड नॉइस को 99% तक. द इंटेलिजेंट मोशन ट्रैकिंग सेंसर कैलकुलेट्स द साउंड डायरेक्शन. ये जो इंटेलिजेंट मोशन ट्रैकिंग है वो साउंड के डायरेक्शन को ट्रैक करता है और इंश्योर करता है साउंड डिलीवरी 360 डिग्रीज तक. अगला है वन प्लस रिस्ट बैंड. दिस इज वन प्लस का रिस्ट बैंड जो कि इक्विप्ड है, AI पावर्ड है, एंड इसमें जो है इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स को यूज़ किया गया है आपके ब्लड ऑक्सीजन को मॉनिटर करने के लिए, सैचुरेशन लेवल को मॉनिटर करने के लिए, और आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है आपके हेल्थ से रिलेटेड. एडिशनली इट मेजर्स द यूजर स्लीप स्कोर. ये यूजर के स्लीप स्कोर को भी मेजर करता है टू इम्प्रूव देयर स्लीप क्वालिटी एंड पर्सनल रूटीन एंड गोल्स. सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है ये रिस्ट बैंड. नेक्स्ट है यूनो बाय प्लेमेकर. यूनो क्या है, ये एक स्मार्ट मोशन सेंसर शूज़ है जिसे स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सॉकर प्लेयर्स के लिए, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, गेम्स के प्रति जो ट्रेनिंग स्किल्स हैं उसे इम्प्रूव करता है. इसमें जो स्मार्ट सेंसर है वो क्या करता है, ट्रैक करता है प्लेयर्स को, उनके मूवमेंट्स को 1000 times per second, and while measuring the movements such as impact with the ground, ball rotation and foot rotation, and AI algorithm is used to convert data into information. ये जो AI algorithm है वो डेटा को information में convert करता है, which can then be used for to better understand the weaknesses, जो help करता है अपनी weaknesses को समझने में, and then turn them into strength, और फिर आप उन weaknesses को strength में convert कर सकते हो. Next is सेंसोरिया फिटनेस वेरेबल क्लोथ. अब आप देख सकते हो ये है सेंसोरिया वेरेबल फिटनेस क्लोथ, जो क्या है, एक स्मार्ट गारमेंट है जिसमें सॉक्स और इसमें सॉक्स जो है इंक्लूडेड है टेक्सटाइल सेंसर के साथ, अलॉन्ग विथ अ कनेक्टेड एंकलेट डिवाइस टू प्रोवाइड रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटरिंग, जो रियल टाइम हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं. ये डिलीवर करते हैं रिलायबल डेटा को ऑन हाउ द यूजर फुट लैंड ऑन द ग्राउंड. ये बताते हैं कि यूजर का जो फुट है कैसे लैंड कर रहा है ग्राउंड पे वाइल वॉकिंग एंड रनिंग, वॉक और रन करते समय. द AI बेस्ड क्लोथिंग एंड द कनेक्टेड ऐप प्रोवाइड टिप्स टू द यूजर. ये जो AI बेस्ड क्लोथिंग है ये क्या करता है, ये जो ऐप है ये टिप्स प्रोवाइड करता है यूजर को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को और जो भी रिस्क है इंजरीज के उसे इम्प्रूव करने के लिए. नेक्स्ट इज गूगल ग्लास. गूगल ग्लास 2 with the AI software toolkit from Envision makes an excellent tool for blind and low vision people. ये गूगल ग्लास 2 जो है लो विजन पीपल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ब्लाइंड्स के लिए काफ़ी अच्छा है. by helping them to manage and the surrounding environment. It uses cameras to identify objects and AI software components. ये जो है कैमराज यूज़ करता है ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, AI सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को यूज़ करता है टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्राइब देम टू अ यूज़र. ये उन्हें ये रिकॉग्नाइज करने में और उन्हें यूज़र को बताने में हेल्प करता है. विद द ऐप द ग्लास कैन रीड टेक्स्ट फ्रॉम पोस्टर. ये जो ऐप है ये क्या कर सकता है, रीड कर सकता है टेक्स्ट को पोस्टर से, मेन्यूज से. द डिवाइस इज मल्टीलिंगुअल एंड कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज फेसेस. ये डिवाइस है मल्टीलिंगुअल है और फेसेस को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, ऑब्जेक्ट्स के शेप को जो आइडेंटिफाई कर सकता है और सराउंडिंग को डिस्क्राइब कर सकता है और रीड कर सकता है कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स. सो ये सारे बेनिफिट्स हैं गूगल ग्लास के. नेक्स्ट है लिवियो एज AI बाय स्टारकी हियरिंग टेक्नोलॉजीज. मिनेसोटा है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इसे, एंड ये एक मल्टी फंक्शनल हियरिंग और एड है. एंड इसमें जो है जेस्चर रिकग्निशन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ भी हैं. ऑडिबली इम्पेयर्ड पीपल मीन्स जो सुन नहीं सकते ऐसे लोगों के लिए बनी हुई डिवाइस
जिनको जो है सुनने में प्रॉब्लम है। ये जो डिवाइस है सेव करती है उनको गिरने से या इंजरीज से। अगला आता है एयर मॉनिटरिंग वेरेबल एआई। ये है एयर मॉनिटरिंग वेरेबल एआई। इसे जो है लुइसविल कैचनी ने बनाया था। एंड दीज आर वेरेबल डिवाइस मेड बाय एयर लुइसविल एंड बीइंग यूज्ड टू मॉनिटर लोकल एयर क्वालिटी। एयर की क्वालिटी को मॉनिटर करता है, पॉल्यूटेंट्स को मेजर करता है और आइडेंटिफाई करता है हॉटस्पॉट्स को रेसिडेंट्स के लिए और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स से के बारे में बताता है। सो इट इज़ अ स्मॉल सेंसर दैट कैन बी क्लिप्ड टू क्लोथ्स। ये एक छोटा सेंसर है जो कपड़ों पे हम क्लिप कर सकते हैं या फिर पर्स में, ताकि ये मेजर कर सके एयर की क्वालिटी को, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एम्बिएंट लाइट को, यूवी एक्सपोजर को। नेक्स्ट इज प्रोस्थेटिक लेग विथ एआई। सो रिसर्चर्स यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और डेवलप किए हैं प्रोस्थेटिक लेग्स जो कंप्यूटर विजन के साथ अवेलेबल है। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है ये हेल्प करती है लेग्स को फंक्शन करने में सिमिलरली टू एन एबल्ड बॉडी पर्सन एंड एडजस्ट देयर मोशन बाय ऑब्जर्विंग द सराउंडिंग। और उनके मोशन को एडजस्ट कर देती है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। What AI could do in the future? This is your next topic. So AI is going to change the world more than anything in the history. History में जितनी भी चीज़ें हुई उससे ज़्यादा AI जो है दुनिया को बदल देगा। It's predicted that humans will be an era surrounded by trillions of machines that think like human. So ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमंस हैं वो एक एरा बन जाएंगे और उनके आसपास होंगे ट्रिलियंस ऑफ मशीन्स जो ह्यूमंस की तरह बिहेव करेंगे। एआई जो है कैरी कर सकता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को ह्यूमन ब्रेन के और जो है एनहांस कर सकता है खुद की इंटेलिजेंस को। एआई को ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है देता है ऑन एवरी इंडस्ट्री। एआई इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन स्मार्ट डिवाइसेस। एआई जो है स्मार्ट डिवाइसेस में प्रेजेंट है, ऑटोमोबाइल्स में, हेल्थ केयर सिस्टम में और फेवरेट ऐप्स में प्रेजेंट है। एंड इट विल कंटिन्यू टू ट्रांसफॉर्म मेनी अदर इंडस्ट्रीज। और ये जो है बाकी की दूसरी इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है इन अ फॉरसीएबल फ्यूचर, आगे आने वाले फ्यूचर में। नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स ऑफ एआई इन द फ्यूचर। So the following are some important milestones that AI is expected to be able to achieve in the upcoming years. आने वाले सालों में AI क्या क्या कर सकता है उसके ऊपर कुछ सर्वे वगैरह किया गया था तो उसके बारे में यहाँ लिखा है। जैसे 2024 में ग्लोबल डेटा फोरकास्ट ने स्पेंड किया है AI प्लेटफॉर्म्स पे जो कि $52 बिलियन जितना है। ना 2026 में AI जो है will be able to write a high school essay, means हाई स्कूल के बच्चे जैसा एक ऐसे भी लिखने लायक हो जाएगा वो, which will receive high grades and will seem like an original work by a person. ऐसा लगेगा कि एक नॉर्मल इंसान ने लिखा है। 2027 में कहा जाता है कि AI जो है हो सकता है ड्राइव कर सके ट्रैक बेटर दैन अ ह्यूमन। 2030 में चाइना विल बी द प्राइमरी AI इनोवेशन सेंटर बाय 2030। 2030 तक चाइना जो है AI इनोवेशन जो है उसने काफ़ी ज़्यादा कर लिया होगा, उसका सेंटर बन सकता है। 2049 तक AI को ऐसा कहा जाता है कि इट विल राइट अ नॉवेल ऑन शॉर्ट स्टोरीज दैट विल मेक इट टू द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट। तो ये हो सकता है नॉवेल लिखना शुरू कर दे। 2060 में देर आर 50% चांसेस ऑफ फुल ह्यूमन लेवल AI। सो 2060 तक हो सकता है 50% AI जो है ह्यूमन लेवल्स तक पहुंच जाए। 2120 तक देर इज 75 प्रोबेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लेवल AI, मीन्स 2120 तक हो सकता है कि हर जगह AI फैल जाए और ह्यूमंस ना हो। How AI will change the world? AI कैसे वर्ल्ड को चेंज करेगा? So AI is driving the development of leading emergency technologies including robotics, IoT and big data. So AI इन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए to think about and how AI could impact all aspects of life. कैसे AI जो है जितने भी aspects उनको impact कर सकता है, prepare कर सकता है, deal with the challenges and it could bring with it.
नाउ लेट्स लुक इनटू द डिटेल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए डिटेल में देखते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि कैसे जो है एआई ने जो है डिफरेंट फील्ड्स में जो है अपना नाम कमाया है। सो फ्यूचर ऑफ एआई इज हेल्थ केयर एनहेंसिंग ह्यूमन लाइफ, एजुकेशन, डेली कोरस, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, केयर टू बी, एंटरटेनमेंट, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड द ह्यूमन रेस। सो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में एआई जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। एआई एल्गोरिदम ने हेल्प किया है डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को काफ़ी अच्छे से चीज़ों का एनालाइज करने में, एनालिसिस ऑफ बिग डेटा, और हेल्प किया है हेल्थ केयर जेनरीज में, एनवायरनमेंट में, लाइफस्टाइल में और बाकी चीज़ों में। बाय 2030 एआई विल एक्सेस मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा। 2030 तक एआई जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, पैटर्न को शो कर सकता है डिजीज के बारे में, और हेल्प कर सकता है डायग्नोसिंग, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ द पेशेंट। AI will be able to predict an individual's risk of particular disease। AI जो है किसी भी पर्सन के पर्टिकुलर डिजीज के रिस्क के बारे में बता सकता है, प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में सजेशन दे सकता है। AI हेल्प करेगा रिड्यूस करने में वेटिंग टाइम ऑफ पेशेंट्स का वेटिंग टाइम जो है उसे रिड्यूस करेगा, इम्प्रूव करेगा एफिशिएंसी हॉस्पिटल में और हेल्थ सिस्टम में। इन द फ्यूचर वी विल हैव अ होल हॉस्पिटल इन आवर बॉडी। फ्यूचर में अगर हम देखें तो हमारी पूरी बॉडी में पूरा हॉस्पिटल होगा। वी विल हैव AI पावर्ड नैनो मशीन्स मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारी बॉडी में AI पावर्ड नैनो मशीन्स होंगे दैट विल सर्कुलेट इन आवर ब्लड, जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करेगा, एक्यूमुलेटेड एट डिजीज साइट्स एंड ट्रीट द इलनेस, और इलनेस को ट्रीट करेगा। फिर बारी आती है ट्रांसपोर्टेशन की। सो AI का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में, एंड it is done by the self driving automobiles which do not need humans। यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग जो है कार और ऑटोमोबाइल्स बन गए जिसमें ह्यूमन असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग एक्सीडेंट, और ये एक्सीडेंट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इन द फ्यूचर ऑल सी रूट्स, रेल रूट्स, प्लेन रूट्स एंड रोड्स टू विल हैव ऑटोनॉमस शिप्स, ट्रेन, प्लेन, कार एंड अदर व्हीकल्स with built-in safety to destroy obstacles, obstruction and prevent accident। तो फ्यूचर में जो है ये जितनी भी चीज़ें हैं, शिप, ट्रेन, बस, ये सब ऑटोनॉमस हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होंगे। नाउ नेक्स्ट कम्स एंटरटेनमेंट। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, लोग जो है अपने खुद के मूवीज़ को कस्टमाइज कर पाएंगे, अपने फेवरेट वर्चुअल कैरेक्टर को चूज़ कर पाएंगे, सजेस्ट कर पाएंगे स्टोरी लाइन किसी भी स्टोरी में, एंड देन डायरेक्ट देयर ओन मूवीज़, और खुद की मूवीज़ भी डायरेक्ट कर पाएंगे। AI जो हेल्प करेगा इन एग्जामिनिंग द मूवी स्क्रिप्ट को एग्जामिन करने में और प्रिडिक्ट करने में कि कैसे लोग जो है रिएक्ट करेंगे इस स्टोरी पे, रिजल्टिंग इन अ बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द मूवीज एट द बॉक्स ऑफिस, जिसकी वजह से जो मूवीज उसका बेस्ट परफॉर्मेंस हो पाए बॉक्स ऑफिस पे। नेक्स्ट अगर हम फार्मिंग की बात करें तो AI ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है फार्मिंग में भी। ग्रेन्स को सो करना, ग्रो करना, फर्टिलाइज करना और रिड्यूस करना केमिकल यूज़, ये सब जो है क्या करता है, जो फूड प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। AI जो है फार्मर्स को असिस्ट करेगा अबाउट द डिमांड्स ऑफ द क्रॉप की क्या डिमांड है, और ये जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन लाइक रोबोट है, ये कैप्चर करेंगे रियल टाइम फार्मिंग इमेजेस फार्मर्स को, एंड जिसकी वजह से वो अपने जो फार्म्स हैं उसके ऊपर पूरा आई रख पाएंगे। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन द कमिंग ईयर्स। ऐसा कहा जाता है कि आने वाले सालों में वर्ल्ड की पॉपुलेशन और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, एंड हेंस आवर फूड डिमांड विल ऑल्सो राइज, और इसकी वजह से हमारा जो फूड डिमांड है वो भी बढ़ेगा। सो जो प्राइमरी एम है AI का वो है रिड्यूस करना फूड वेस्टेज को रिड्यूस करना और इंक्रीज करना फूड प्रोडक्शन इन अ सस्टेनेबल वे में। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। AI will allow personalized learning for each student। हर बच्चे के लिए personalized learning देगा और learning देगा, टेस्टिंग देगा और फीडबैक देगा हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को। जो मशीन्स हैं वो जो बच्चे उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर पाएंगे and indicate they are finding a topic difficult and will modify the lesson in response। मीन्स बच्चों के अकॉर्डिंग लेसन्स को
जो है मोल्ड कर दिया जाएगा, टॉपिक्स को ईजी किया जाएगा और उन्हें समझाया जाएगा। AI विल लीड टू एजुकेशन विदाउट बाउंड्रीज, एजुकेशन को विदाउट बाउंड्रीज ये लीड करेगा, उन्हें जो है हाई क्वालिटी ऑनलाइन कोर्सेज देगा। स्टूडेंट्स जो कि हर एज के हैं उनके लर्निंग प्रोसेस को एडजस्ट करेगा, नीड्स को एडजस्ट करेगा एंड एनवायरनमेंट को, एंड AI विल फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ एनी कोर्स फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। AI जो फैसिलिटेट करेगा लर्निंग किसी भी कोर्स का कहीं से भी किसी भी वक्त। एनहांसिंग ह्यूमन लाइफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल एलिमिनेट द नीड ऑफ ह्यूमन वर्कर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, कम कर देगा ह्यूमन वर्कर्स की, एंड दे विल हेल्प विथ हाउस होल्ड कोरर्स एंड अदर रेपिटेटिव एंड फिजिकल डिमांडिंग जॉब्स। और ये जो है हाउस होल्ड कोरस में लोगों की हेल्प करेगा, दूसरे जॉब्स पे हेल्प करेगा जिसमें जो फिजिकल डिमांडिंग जॉब हैं जैसे डस्टिंग, गार्डिंग, मॉपिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। न्यू जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए नए जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। इट्स ईजी फॉर मशीन टू एंड ऑटोमेशन टू परफॉर्म रिकरिंग एंड रूटीन टास्क। मशीन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है कि वो रूटीन टास्क को कर पाएँ क्योंकि वो उनका रूटीन बन जाता है। रोबोट्स विल ऑल्सो बी रनिंग बिजनेसेस, रोबोट्स बिजनेस चलाएंगे। जॉब्स एंड रोल्स विल शिफ्ट इन द नेक्स्ट डिकेड, आगे हो सकता है आने वाले 10 सालों में जॉब्स और जो रोल्स हैं वो शिफ्ट हो जाएं। एवरीवन विल हैव टू लर्न न्यू स्किल्स, हर किसी को नए स्किल्स पढ़ने पड़े, समझने पड़े। रोबोट्स क्या करेंगे, दे विल बी एबल टू परफॉर्म मोस्ट ऑफ द वर्क, ये जो है ज़्यादातर काम कर पाएंगे जैसे कि असेंबलिंग प्रोडक्ट्स को असेंबलर करना, ईमेल्स को सेंड करना, ड्राइव करना, ट्रेनिंग देना। दैट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, टाइमली एंड एफिशिएंट, जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, टाइमली होगा और एफिशिएंट होगा। Thus, increasing productivity which would allow humans to have more time on social. So, इसकी वजह से जो productivity है वो increase होगी और जो humans हैं वो काफ़ी ज़्यादा time दे पाएंगे social, recreational and artistic चीज़ों की तरफ। So, in the near future, machines will become best friend, advisors and caretakers. So, as machines are getting more intelligent and can better adopt their users, पीपल में चूज टू इंटरैक्ट विथ मशीन्स। जैसे कि ये जो मशीन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, बेटर अडेप्ट कर पाते हैं बेटर यूजर्स को, पीपल को, एंड इंटरैक्ट कर सकते हैं मशीन्स के साथ। रोबोट्स एंड AI could provide good care and support for an elderly ill. सो जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो डिसेबल हैं, ऐसे लोगों को रोबोट्स और AI जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, उनका अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और उन्हें इंडिपेंडेंटली रहने में हेल्प कर सकते हैं। फ्यूचर रोबोट्स विल ऑल्सो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू ह्यूमंस एंड एंगेज बेटर विद देम। फ्यूचर रोबोट्स जो ह्यूमंस के साथ इमोशनली भी अटैच्ड हो सकते हैं, उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं और उनके फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन रेस मीन्स हम ह्यूमंस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कंप्यूटर जो है सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आ जाएगा ह्यूमंस के जितना बाय 2045 तक। बिग डेटा को यूज़ करके AI जो है सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाएगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन को ले पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा ट्रेंड्स को, नॉलेज को यूज़ कर सकता है सोल्यूशंस को पाने के लिए, एंड वर्ल्ड के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर सकता है जैसे कि हंगर, डिजीज, क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन एक्सेट्रा। लिविंग इन सिम्बायोसिस विथ AI। सो ऐसा माना जाता है कि we will be able to connect our brains to the cloud by the year 2030। ऐसा कहा जाता है कि 2030 तक हम अपने ब्रेन्स को क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हैं। In the future we will be living in the symbiosis with super intelligent AI system। आगे आने वाले फ्यूचर में हम AI सिस्टम के साथ रहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट होंगे। साइंटिस्ट प्लान टू अपलोड एंड सेव द कंटेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स। साइंटिस्ट क्या करेंगे, प्लान करेंगे, अपलोड करेंगे, सेव करेंगे कंटेंट को ह्यूमन ब्रेन के कंप्यूटर्स पे ऑन द क्लाउड पे इन सब चीज़ों को सेव कर देंगे। अलाउिंग ह्यूमंस टू स्टे अलाइव इन रोबोटिक बॉडीज मीन्स ये जो ह्यूमन है वो रोबोट्स की बॉडी में जिंदा रहेंगे और होलोग्राम्स बाय 2050 मीन्स 2050 तक ये भी पॉसिबल हो सकता है। नाउ देयर आर सम कंसर्न्स अबाउट फ्यूचर ऑफ AI। So there are several ethical concerns about AI that you have studied in the previous class.
लाइक AI बायस एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये कुछ कंसर्न्स हैं जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। विद द प्रोग्रेस ऑफ AI देयर माइट बी अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ प्राइवेसी लॉस। तो जैसे जैसे AI बढ़ रहा है, प्राइवेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। AI कैन बेनिफिट सोसाइटी ओनली इफ इम्प्लीमेंटेड रिस्पॉन्सिबली। अगर AI को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बेनिफिशियल हो सकता है सोसाइटी के लिए। हाउएवर, अगर कोई ऐसी केस आ जाता है जिसमें मोस्ट emerging टेक्नोलॉजीज देयर इज अ रिस्क ऑफ कमर्शियल एंड गवर्नमेंट मिसयूजेस। सो अगर इसे ठीक से ना किया गया तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कमर्शियल रिस्क हो सकता है, गवर्नमेंट का मिसयूज हो सकता है, विच कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। सो वी मस्ट डिफाइन गाइडलाइंस एंड लॉज टू डील विद द अपकमिंग चैलेंजेस ऑफ AI। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें गाइडलाइंस को डिफाइन करना चाहिए, लॉज को, एंड अपकमिंग जो भी आने वाले चैलेंजेस हैं AI के उनको साथ डील करना आना चाहिए। द गोल ऑफ डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज इज टू मेक ह्यूमन लाइफ बेटर। जो गोल है न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने का, वो क्या करता है, वो ह्यूमंस को की लाइफ को बेटर बनाता है। द अनफॉर्चुनेट फैक्ट इज दैट वी हैव नो रियलाइबल वे ऑफ नोइंग द एग्जैक्ट इम्पैक्ट। सो जो मेन अनफॉर्चुनेट फैक्ट है वो ये है कि ये जो रिलायबल नहीं है एग्जैक्ट इम्पैक्ट को जानने के बारे में of our lives in the future. Living in the virtual world may have an unexpected impact. अगर हम इस वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है अनएक्सपेक्टेड इम्पैक्ट दे सकता है ह्यूमन माइंड पे और लीड कर सकता है नए प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को दैट विल नीड टू बी डील्ड विद, जिसके साथ डील करना काफ़ी मुश्किल होगा। बट वी नो दैट वी कैन नॉट स्टॉप द प्रोग्रेस। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम प्रोग्रेस को नहीं रोक सकते। एंड वी हैव टू थिंक हार्ड एंड वर्क स्मार्ट। हमें जो है काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली सोचना और वर्क करना होगा टू कीप अप विद दिस रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ हाथ से हाथ मिला के हमें ठीक से चलना होगा। सो दिस वॉज द चैप्टर। लेट्स मूव ऑन टू लेट्स रिकॉल। Machine learning includes many different methods of providing training and making machines intelligent, and one such method that helps machine learn is artificial neural network. This method stimulates the working of human brain. AI is making the machines capable of learning on their own through experiences. Socrates is an AI-powered app acquired recently by Google. It assists students with arithmetic and other assignments. Students can use their phone camera to take pictures of their queries, and Socrates uses its AI capabilities to provide visual explanation for the concept. Wearable devices are now being powered by AI in order to enhance their functionality. AI is driving the development of leading emerging technologies including robotics, IoTs, Internet of Things, and big data. It's more important that even the society to think about how AI could impact all aspects of daily life and prepare to deal with the challenges it could bring with it. Now let's move on to book exercise, which is exercise time. So here A exercise is tick the correct option. So children, here the first question is examples of NLP include understanding a prescription, voice search at Google, voice typing, or all of these. So here the correct answer is all of these. So NLP includes all of these options. Now this app assists students with arithmetic and other assignments. It's Yoper, Daily Hunt, Data Board, or Socrates. So it is Socrates. So do the rest on your own. Next, B exercise, and it is fill in the blanks. So children, here the first question in fill in the blanks is self-driving cars will not require human assistance in the future, and the second one is artificial intelligence helps the machine behave like humans up to some extent. So question number 3, 4, 5 is a homework. Now let's move on to C part, which is write true or false for the following statements. So Lobe is an AI created Microsoft app that allows user to train machine learning models without writing any code. Yes, this is true.
Brainly is the most popular music app in the world and uses AI and machine learning. This is false. So the music app is Spotify. So the rest of the questions are your homework, children. Do them yourself. And with this we have completed the chapter. I hope you enjoyed learning it. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.